یہ وہی مکہ ہے جہاں بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں بیٹیوں کو زمین میں زندہ کر دیا جاتا تھا۔ اے پیارے مسلمانوں، آج کا جائزہ لو، آج کے ماحول کا جائزہ لو۔ اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو دادی کا چہرہ الگ اتر جاتا ہے، دادا کا چہرہ الگ اتر جاتا ہے۔ اس عورت کو تانے دیے جاتے ہیں جب سے یہ منحوس گھر میں آئی ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں گھر میں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ 25واں پارہ کھول کے دیکھو، رب ارشاد فرماتا ہے یَحْبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَحْبُ لِمَنْ یَشَاءُ ذَکُورًا اور یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانج بنا دیتا ہے۔ بیٹا دینا اللہ کے دستے قدرت میں ہے، بیٹی دینا اللہ کے دستے قدرت میں ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دنیا یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ اللہ نے 15ویں پارے میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی روزی دیتے ہیں۔ جب روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، کھانا کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، تم غریبی کے ڈر سے قتل کرنے والے کون ہو؟ حضرات تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دہیہ کلبی نے کہا کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا اس کو نہیں پہچانتے، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ حضرات انہوں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا، کدال لے کر کے جب چلنے لگے تو بی بی نے پیر پکڑ کے کہا مت لے جا میری پھول سی بیٹی کو، مت لے جا میری لاڈلی کو۔ کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، میں جنگل میں پہنچ گیا، گڑھا کھودنے لگا، میرے پیروں میں جب کانٹے لگے خون نکلنے لگا۔ میری بیٹی نے کہا بابا گھر پہ واپس چلو، باپ کا لہو بہا کے کھانا نہیں کھانا ہے، باپ کا خون بہا کے کھانا نہیں کھانا ہے، بابا واپس چلو۔ کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ کہتے ہیں جب میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اعظم ہندوستان مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، خطیب اعظم ہندوستان مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیے آپ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ آمد تیمم برخاست۔ بیٹھیں آپ حضرات، بہت جلدی بیٹھ جائیں آپ حضرات، بس تھوڑی سی بات بیٹھیں۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کہتے ہیں کہ جب میں جنگل کی طرف گیا اور جب میں نے گڑھا کھودا، اپنی بیٹی کو جب میں نے اس میں کھڑا کیا، اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی، کہتے جب میری بیٹی پنڈلیوں تک دب گئی، تب میری بیٹی نے ہاتھ اٹھا کے کہا بابا گود میں لے لو، پنڈلیاں درد سے پھٹی جا رہی ہیں، پنڈلیوں میں درد ہو رہا ہے، بابا گود میں لے لو۔ کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، جب میں نے اور مٹی ڈالنا شروع کی میری بیٹی سینے تک دب گئی، کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، میری بیٹی جب گلے تک دب گئی، تب میری بیٹی نے اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا کہ میرے مولا جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ مولا میں نے اپنے گھر میں سنا ہے کہ بیٹیوں کو بچانے والا پیغمبر آئے گا، کب آئے گا بیٹیوں کو بچانے والا، کب آئے گا زندگی دینے والا پیغمبر، کب آئے گا بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور ہونے سے بچانے والا پیغمبر۔ کہتے ہیں کہ میں مٹی ڈالتا رہا اپنی بیٹی پر۔ آج جس ہندوستان میں تم رہتے ہو، اسی ہندوستان کی سرزمین پر اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اسے بھی چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ وہ بیواؤں کی آہیں آسمان کے پردے سے جا کر کے ٹکرا رہی تھی، کب آئے گا بیواؤں کو بچانے والا؟ آج جو بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، آج جب ہائی وے کے پاس سے گزرو تو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ آج اگر کوئی کار نکل کر کے جا رہی ہو، اکثر کاروں کے پیچھے چھوٹے ہاتھی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ ارے ان کو آج یہ نعرہ نظر آیا ہے، ہزاروں بہنوں اور ماؤں کو چتاؤں پہ جلانے کے بعد میں یہ نعرہ ان کے باپ کی دین نہیں ہے، یہ نعرہ اگر سب سے پہلے لگا ہے تو مکے کی سرزمین پر مدینے والے مصطفیٰ نے لگایا ہے۔
रात तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बेटियां पुकार के कह रही थी, मौला कब तक बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा, मौला कब तक बेवाओं को चिताओं पे जलाया जाता रहेगा। तो ऐ केसरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खानाए काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, हजरत अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ जमीन में दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। मुस्तफ़ा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफ़ा आए, यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए, बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफ़ा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए, नातवा मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए, ज़ईफ मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए, कमजोर मुस्कुरा के कह रहे थे हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। यतीम पुकार के कह रहे थे हमारे सर पे दस्ते शफकत रखने वाला पैगंबर आ गया। बेवाएं पुकार के कह रही थी हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। जमीन में दफन होने वाली बेटियां कह रही थी हमें जिंदा दफन होने से बचाने वाला पैगंबर आ गया। मेरा इमाम पुकार के कहता है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा। हजरत फरमाते अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मक्के वालों के दिल अंधा शीशा हो चुके थे, मक्के वालों के दिल मुर्दा हो चुके थे। मेरा इमाम पुकार के कहता जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। रात तो ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। मक्का शरीफ में मेरे आका तशरीफ लाए, हजरत आमिना का बयान है मेरा बेटा मेरी निगाहों से गायब हो गया, मैं परेशान हो गई, मेरा लाल कहाँ चला गया। कहती मेरे कानों में एक आवाज आई आमिना परेशान मत हो, तेरी गोद में जो पैगंबर तशरीफ लाए हैं वो खैरुल बशर है, इन्हीं के सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया है। हजरात कोई कहने वाला ये कह रहा था, मुनादी करने वाला ये ऐलान कर रहा था मेरे महबूब को आसमानों की सैर कराओ, जमीनों की सैर कराओ, इन्हें आदम की सितवत दे दो, इन्हें नूह की शुजात दे दो, इन्हें इब्राहीम की खुल्लत दे दो, इन्हें इस्माइल का वजह ईसार दे दो, इन्हें दाऊद की खिलाफत दे दो, इन्हें सुलेमान की सितवत बादशाहत दे दो, इन्हें मूसा का जलाल दे दो, इन्हें ईसा का जमाल दे दो, इन्हें हारून की फसाहत व बलागत दे दो। वो तमाम खूबियां तमाम सिफतें जो पैगंबरों में अलग अलग पाई जाती थी वो तमाम खूबियां तमाम सिफतें जमा करके परवरदिगार आलम ने ज़ाते मोहम्मद में रखी। शायर पुकार के कहता है हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे पैजादारी, आंचे खूबा हमा दारंद तू तनहा दारी, जूम के कदमे नबी बोले ये जिब्रील अमी आप सा कोई नहीं। आला हजरत पुकार उठे लमियाते नज़ीरों का फी नजरिन, मिसले तूने शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहे दो सरा जाना। रात तो ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। आखिरी बात बता दूं, अपनी जगह बैठ जाऊं। जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 साल की होती है, रात एक दिन हजरत आमिना उदास बैठी थी, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अम्मी उदास कैसी हो? तो हजरत आमिना ने कहा बेटा अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब से पूछो, हम यसरब जाना चाहते हैं। यसरब आज जिसका नाम मदीना मुनव्वरा है उसका नाम यसरब था, मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले चले जाओ साथ में उम्मे ऐमन को ले जाओ। हजरत आमिना आई, यसरब में रही, कुछ दिन रही, उसके बाद जब वापस हो रही थी तो मक्के और मदीने के बीच में एक जगह जिसे मकाम अबवा कहते हैं, वहाँ हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला वहीं ठहर गया, रुका रहा, कुछ भी दिन रुका
सूखा हो, लेकिन जब तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हुआ तो हजरत आमिना से काफिले के सरदार ने कहा, आमिना अब इजाजत दे दो, हम जाना चाहते हैं। हजरत आमिना ने कहा, शौक से जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया। हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो साथ आई जो सब पे आनी है। हजरत आमिना पे जब जाकनी का आलम तारी हुआ, मेरे नबी ने देखा मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया, आका अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है, हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवा हसना बोल रहा था। माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है, माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। हजरत आमिना को मेरे नबी ने देखा, माँ का साया सर से उठने वाला है। केसरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी बेटे के बाप के इंतकाल का वक्त करीब आ जाए, कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं, कितने लोग होते हैं जो बच्चे की ढारस बंधाते हैं। चाचा कहता है, मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चाचा मौजूद है। ताऊ कहता है, मत रो मेरे लाल, अभी तेरा ताऊ मौजूद है। खालू अलग सहारा देने की बात करता है, मामू अलग सहारा देने की बात करता है, फूफा अलग सहारा देने की बात करता है। कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर, मेरे नबी की वालिद का साया तो तभी सर से उठ गया था जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। अब 6 साल की उम्र मेरे आका की है, माँ का साया भी सर से उठने वाला है। बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है वहाँ पर जो सहारा देने की बात करे। हजरत उम्मे ऐमन है और हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा है। वो चटियल मैदान है, तड़पती हुई गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है, तड़पती हुई रेत है, दूर दूर तक पहाड़ और बबूल के दरख्त नजर आ रहे हैं। हजरत आमिना की रूह कब से उनसरी से परवाज करने वाली है। मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, मेरे आका रो रहे हैं। मेरे आका के चेहरा अनवर पर अपना दस्ते शफ़क़त फेरते हुए कहा, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। मेरे नबी की वालिदा का साया सर से उठने वाला है। हजरत आमिना ने कहा, बेटे मैं तुमसे चंद बातें करना चाहती हूँ। मेरे नबी ने अपने मुबारक कानों को माँ के लबों के करीब किया। हजरत आमिना ने जो आखिरी जुमले कहे थे, मेरे लाल मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारी कायनात में मेरे लाल तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी नहीं मिटेगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। हजरात ये अल्फाज कहे और हजरत आमिना की आवाज बंद हो गई। मेरे नबी अपनी माँ से कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। उम्मे ऐमन कहती, उन्हीं पथरीली वादियों में 6 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की कब्र बनाई और मेरे आका ने अपनी माँ को वही दफन किया। उम्रतुल क़ज़ा के मौके पे, आखिरी बात सुन ले, उम्रतुल क़ज़ा के मौके पे, उम्रतुल क़ज़ा किसे कहते हैं? हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, बहुत काबिल शख्सियत, मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। अल्लाह हजरत का साया दराज फरमाए और इल्म व अमल व उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरात उम्रतुल क़ज़ा, जब मेरे आका उम्रा करने के लिए गए थे तो कुफ़ारे मक्का ने कहा, हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। जो सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया था, उस मौके पे ये बात तय पाई थी, अगले साल को हम आएंगे उम्रा करने के लिए। जब मेरे आका उम्रा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, उम्रतुल क़ज़ा के मौके पे मकाम अबवा में चंद पत्थर
रखे हुए थे एक जगह पे, वहां बैठ के आका रोने लगे। जब मेरे आका रोए तो सहाबा ने अर्ज किया, आका आप यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हैं? नबी ने फरमाया, ये जो पत्थर रखे हुए देख रहे हैं, ये तुम्हारे नबी की वालिदा की कब्र, हजरत आमिना की कब्र है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अपनी माँ को याद करके रो रहे थे। प्यारे मुसलमानों, आज मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये वही मक्का है जहाँ पर बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये वही मक्का है जहाँ पर बेटा माँ को ले जा करके बाजार में बेच आता था या खुद उसको अपने पास रख लिया करता था। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेकर के फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियों से मोहब्बत करना सिखाया। मेरे नबी अपनी माँ को याद, माँ से मोहब्बत करने का पैगाम दे रहे हैं, माँ से मोहब्बत करने का हमें ये दर्स दे रहे हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, हमें करनी है शहंशाह वदहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। रात हमें आका के फरमान पे अमल करना है, हमें नबी के बताए रास्ते पे चलना है। जिस तरह हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे गलियां सजाते हैं, जिस तरह रास्तों को हम साफ करते हैं, ऐसे ही हमें अपने दिलों को साफ करने की जरूरत है। हमारे दिल में बुग़्ज़ ना रखे, हमारे दिल में हसद ना रहे, हमारे दिल में कीना ना रहे, हम आपस में मिलजुल करके एक बन करके रहे। हजरात, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आलीशान है, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। हमको आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, तभी हम कामयाब व कामरान हो सकते हैं। जब तक हम नबी के बताए हुए रास्ते पे चलते रहे, सारी दुनिया में हमारी हुकूमत रही। जब से नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया, नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया, आज हम दूसरों के दरवाजों पे जाकर के घुटनों के बल बैठे हुए हैं, तब भी हमारा कोई वकार नहीं। अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, फायजुल मुराम होना चाहते हो, तकर्रुब इल्लाह की मंजिल पे गामजन होना चाहते हो, तो मदीने वाले मुस्तफा के फरमान पे अमल करो, नबी के बताए रास्ते पे चलो। दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे, जन्नत की बहारें तुम्हारे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को जलवागर फरमाया। मेरा इमाम फरमाता है, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा ये पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम। आइए 2-3 शेर पढ़ने के लिए कारी मेराब साहब को सजदा